ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ऑलराइट, सो हाय एवरीबॉडी। आज हम आर्टिस्ट्री के बारे में जानकारी ले लेंगे। टुडे विल बी डूइंग द आर्टिस्ट्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड आर्टिस्ट्री इज अ सुपर प्रीमियम रेंज, and it's not only the world's number one selling super premium brand, but also in India it's number one premium skincare brand. So as I said, it's premium, super premium, so it is a little bit on the expensive side, but like all Amway products, it comes out economical and value for money, and cost per use, it comes out very very economical for daily use or for even the weekly use products. So we'll be covering it. And artistry as a range, as a brand, needs a little bit more in-depth knowledge than our attitude range, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स जैसे मैंने कहा एट फेस वैल्यू जरा एक्सपेंसिव लगते हैं, सो व्हेन द पर्सन इज बाइंग फ्रॉम यू, दे वांट टू नो why they should be paying a little bit more as compared to दूसरे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, not only with Amway but with the other products जो market में available है. So we'll just start a presentation and I'll start sharing a screen. Um, so आज हम बात करने वाले हैं, let me just fill my video. Alright. So आज हम बात करेंगे आर्टिस्ट्री के बारे में. Artistry is a specialized product range for women looking for skincare solutions. So इसमें जो products आ जाते हैं वो usually daily care के लिए use कर सकते हैं, but it's specifically for targeted solutions for some issues or challenges जो skin में आ जाते हैं लोगों को. So Artistry becomes the world's number one super premium beauty care brand. Artistry up till now used to be in the top 5, जैसे मैंने last time कहा था, with the super premium brands that are available in the world. And ये top 5 में क्यों रहता था? क्योंकि जो ranking था वो बार बार बदलता था. But this is the latest thing, 2019 का है. The Artistry is the world's number one super premium beauty care brand. और ये जो आर्टिस्ट्री का मोटो है, विच इज फॉरवर्ड ब्यूटी, मूविंग ब्यूटी फॉरवर्ड, मतलब क्या कि फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग आ जाता है आर्टिस्ट्री का. एंड ये डिस्कवर करता है लॉट ऑफ न्यू डिस्कवरीज हो जाते हैं. दे इमेजिन हाउ द लुक शुड बी, हाउ द रिजल्ट शुड बी, एंड विद अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत सारे इन्वेंशंस करते हैं, बहुत सारे पेटेंट्स आते हैं आर्टिस्ट्री में. एंड इट्स फॉर वुमेन एंड मेन ऑफ ऑल एजेस, सो दैट यू नो दे हैव अ रेडियंट एंड हेल्दी फ्लॉलेस लुक, ये आर्टिस्ट्री के वजह से. सो हम देखेंगे हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है, शी इज एक्ट्रेस, यूएस हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, टेरिसा पामर. यू माइट हैव सीन हर इन ट्रांसफॉर्मर्स के मूवीज में. इनफैक्ट इफ यू सीन ट्रांसफॉर्मर मूवीज, वहां पे न्यूट्रोलाइट का भी एडवर्टाइजमेंट है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट हुआ है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का. सो शी इज आवर ब्रांड एम्बेसडर. शी यूजेस आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स, and you can see how beautiful she looks, how beautiful her skin looks, and it's all because of Artistry products. So Artistry is proud to hold the title of India's number one premium skincare brand. Okay, so India में भी number one है, leading direct selling skincare and cosmetics brand है. ये Euromonitor International के claims है. एंड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का अश्योरेंस है. तो डिजाइनिंग पैकेजिंग का भी प्रीमियम, इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ऑल द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड देयर आर प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस फॉर ऑल पीपल. एंड साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड है, जैसे मैंने कहा बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाता है, ऑल द प्रोडक्ट्स आर क्लिनिकली टेस्टेड, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन जो हो जाता है, एंड क्वालिटी बहुत ही टॉप क्वालिटी के है. सो Artistry products, everybody knows, are topmost quality, not only in India but in the world also. So why do we need skincare? तो skin हमारा जो है वो largest organ of the body है. So जब भी हम किसी को देखते हैं, कोई हमें देखता है, तो the face is the first place that we look, and हमें जो impression आता है वो just appearance of the skin से. So if we want our skin to look better at any age, we have to start thinking कि हम skin का care कैसे रखें, and depending upon the age, our age, and upon our skin concerns,
हमें एक स्किन केयर रूटीन लेना पड़ता है जो हमारे स्किन का ख्याल रख सके. एंड फॉर द स्किन टू लुक and feel better we have to use the right skincare products. प्लस जो स्किन केयर रखते हैं हम, वो डे टाइम का भी जो अलग चाहिए रूटीन एंड नाइट टाइम का अलग, क्योंकि डे टाइम का फंक्शन जो रहता है वो बेसिकली प्रोटेक्शन का रहता है एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, एंड नाइट टाइम का जो रहता है वो रिपेयर का रहता है, नरिशमेंट का रहता है एंड प्रिवेंट द साइंस ऑफ एजिंग. सो आर्टिस्ट्री स्किन केयर जो है ये आपको आपके एज के मुताबिक, आपके स्किन कंसर्न के मुताबिक और आपके डेली रूटीन के मुताबिक, डे एंड नाइट केयर के मुताबिक आपको स्किन केयर देता है, which helps people address whatever skin concerns they have. So the final goal of our skin care is to make sure कि हमारा जो skin है looks healthy and normal looking. So a little bit of in depth, जैसे मैंने कहा कि artistry is a little is a super premium, a little expensive brand, so people want to know what is so specific about it. So whatever I tell you, everything has a reason in all these images जो आप देखेंगे. अभी हमारे स्किन के जो लेयर्स है देखने जाएंगे तो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है. एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर रहता है, एक डर्मिस और एक हाइपोडर्मिस. अभी आर्टिस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स है एंड मोस्ट अदर प्रोडक्ट्स जो है ये एपिडर्मिस तक ही काम करते हैं. इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ओनली, यहाँ तक ही, दिस इज द एपिडर्मिस, तो यहाँ तक ही काम करते हैं. बट द इंटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है आर्टिस्ट्री के, जो स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देते हैं फॉर certain concerns and conditions of our skin, they go even deeper, especially the anti-aging range जो मैं बात करूंगी next time डिटेल में करूंगी. I'll just be touching the products this time, but those products work on the dermis more deeper because they act over here and they repair things over here. And last जो है hypodermis, यहाँ पे कौन से भी कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचते, simply because it doesn't make sense. The hypodermis doesn't have any function to making your skin look good, and we'll come to that. So now हम देखेंगे जो एपिडर्मिस है उसके 5 लेयर्स रहते हैं. But what we need to know is this basal layer over here, सबसे नीचे जो है, और ये ऊपर जो है ये stratum corneum जैसे रखा है. But just understand one thing कि नीचे ये जो cells है ये square है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे रिन्यूअल प्रोसेस नीचे से ऊपर होता है, तो ये सेल्स फ्लैट होते जाते हैं. ओके, सो दीज ये जो एकदम फ्लैट है, एज दे कीप ऑन गोइंग अप they become flatter and they start dying off also, and these are the dead cells up over here जो यहाँ पे रहते हैं. एंड ये डेड सेल्स हमारे स्किन को वो ड्राइनेस, वो फ्लेकीनेस का अपीयरेंस देते हैं. सो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अ स्किन रिन्यूअल, सबका स्किन रिन्यूअल का ये प्रोसेस रहता है. एंड ये जब भी एपिडर्मल सेल्स निकलते हैं बाहर, ये डेड सेल्स निकलते हैं, तो ये प्रोसेस को एक्सफोलिएशन करके कहते हैं. अभी ये फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस क्या रहता है? सबसे ऊपर वाला जो मैंने कहा, ये आउटर मोस्ट सरफेस जो है, इट्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर. ये क्या करता है कि अंदर से मॉइस्चर बाहर नहीं जाने देता, और बाहर का जो पोल्यूटेंट्स है, बाहर का जो अग्रेसर्स है, उसको अंदर नहीं आने देता. सो इट प्रोटेक्ट्स, इट फॉर्म्स अ शील्ड ऑन टॉप ऑफ आवर स्किन एंड मॉइस्चर बैरियर, सो इट कीप्स द मॉइस्चर इनसाइड, सो द रेडियंस इज देयर, द ग्लो इज देयर, द सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस रह जाता है. नाउ द बेसल लेयर, जहां पे मैंने आपको बोला वो स्क्वायर शेप सेल्स है, तो वहां पे नए नए सेल्स तैयार होते हैं, और वहां पे आपको नए केराटिन सेल्स मिलेंगे, केराटिनोसाइट्स, और दूसरा मेलानोसाइट्स. मेलानोसाइट्स मतलब पिगमेंट सेल्स, मतलब जो ब्राउन कलरिंग स्किन का होता है वो यहाँ पे तैयार हो जाता है. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज मेलानोसाइट्स स्टे देयर एंड दे गिव द कलर टू एवरीबडी. हर एक जन का स्किन का रहता है, और ये हेरिडिटरी रहता है. एंड लास्टली पोर्स मतलब छिद्र एंड सेबेशियस ग्लैंड्स रहते हैं जो डर्मिस से निकलते हैं. तो पोर्स में से सीबम एंड स्वेट निकलता है, और सेबेशियस ग्लैंड्स में से सीबम या फिर ऑयल निकलता है. सो हम देखने जाएंगे तो ये आप देखोगे, ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो मैंने बताया आपको, ये सब डेड सेल्स है यहाँ पे, और बीच में ये एक इंटरसेल्युलर सीमेंट है. And what this does is, it, as I said, it prevents moisture loss and it protects from outside harmful elements. And ये जो cement है, it keeps the dead cells together as a layer on your skin.
सो दिस इज द सेल रिन्यूअल प्रोसेस। जैसे मैंने कहा, यहाँ से नीचे से जो स्टार्ट हो जाता है बेसल लेयर से, स्क्वायर सेल्स फ्लैटनिंग फ्लैटनिंग फ्लैटनिंग, डाइंग ऑफ एंड बिकमिंग वेरी वेरी फ्लैट, एंड जब ये इंटरसेल्यूलर सीमेंट निकल जाता है, दे कम ऑफ एज एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन। सो अभी ये जो है, ये सेल रिन्यूअल प्रोसेस नॉर्मली 28 डेज का रहता है, ओके, एंड इन टीनेजर्स इट इज अराउंड 2 वीक्स, जो 28 डेज मैंने लिटिल लेस देन द 28 डेज। बट जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है, जैसे हम ओल्डर हो जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको ज्यादा टाइम लग जाता है। इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 6 वीक्स to 8 weeks, up to 2 months, 80 days तक हो सकता है, 80 days तक भी हो जाता है, 60 to 80 days। so what happens because of that, you can imagine कि 80 days तक ये जो dead skin है ये हमारे skin पे रह जाता है यहाँ पे, and that is going to cause a problem। वो dead skin रहेगा, it will give the dullness, it will give a loss of radiance, and it can also block the pores, जो छिद्र है उसको block कर सकता है। ये जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस है ये नाइट टाइम को सबसे ज्यादा हो जाता है। सो हम देखेंगे यहाँ पे ये सबसे हेल्दी स्किन है, ये ऊपर का लेयर है हेल्दी, आप देखोगे अच्छी तरह से एक शील्ड बना है। पर जब भी ये डैमेज हो जाता है तो आप देखेंगे कि अंदर से सब मॉइस्चर, एक तो क्रैक्स है यहाँ पे, एंड सब मॉइस्चर लॉस हो रहा है, और मॉइस्चर लॉस के साथ यहाँ पे बाहर से एलर्जेंस जा रहे हैं, और ये एलर्जेंस हमारे डर्मिस में, जो एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, उससे भी नीचे जाके डर्मिस में जाएंगे, एंड द एलर्जेंस विल कॉज सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शंस। So that is why you need a very healthy topmost layer of the skin. You need a good shield for your skin. अभी ये मेलानोसाइट, जैसे मैंने कहा, ये सबसे नीचे रहते हैं और ये हमें स्किन कलर देते हैं एंड यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो रहते हैं। और ये जो मेलानोसाइट्स है वो वही रह जाते हैं, दे डोंट माइग्रेट अपवर्ड्स लाइक दी अदर केराटिनोसाइट्स। सो जब भी एक हेल्दी मेलानोसाइट रहेगा तो ऐसा स्किन दिखेगा, पर अगर वो डैमेज हो, हमारा स्किन भी डैमेज हो, कॉर्नियम भी डैमेज हो एंड मेलानोसाइट भी डैमेज हो, तो आप देखोगे कि ये सब लीक हो गया है कलरिंग इन डिफरेंट सेल्स। तो उसके वजह से वो स्पॉट फ्रेकल्स आ जाते हैं, या फिर पैचेस आ जाते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के, एंड दिस इज डैमेज दैट अकर्स विल अकर बिकॉज ऑफ सन रेज ऑल्सो। तो इसलिए ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं, मेल्स में भी आजकल ये हाइपर पिगमेंटेशन, मास्क लाइक पैचेस, बहुत कुछ चेंजेस इन द स्किन दिखने लग गए हैं। अभी ये डर्मिस जो है, एपिडर्मिस तो हो गया अपना, डर्मिस उसके नीचे है, लाइक आई सेड। सो ये डर्मिस का जो काम रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सपोर्ट आ जाता है एंड न्यूट्रिशन टू द टॉप लेयर ऑफ द स्किन एंड टू द डर्मिस। सो नाउ जो सपोर्ट रहता है, plus you'll see these sweat glands, you'll see the sebaceous gland, and you'll see the hair follicle यहाँ पे। so support के लिए क्या रहता है, ये फाइब्रोब्लास्ट करके कुछ सेल्स रहते हैं जिससे ये कोलेजन प्रोटीन्स एंड इलास्टिन प्रोटीन्स तैयार हो जाते हैं। और ये जो प्रोटीन्स है, कोलेजन इज फॉर द स्ट्रेंथ, जो हमारा फर्मनेस रहता है स्किन का उसके लिए है, सो दे प्रिवेंट सैगिंग। एंड इलास्टिन जो रहते हैं वो इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रहते हैं, तो ये जो डिप्रेशन नहीं पड़ जाता, एंड इट प्रिवेंट्स द फाइन लाइंस एंड रिंकल्स जो रहते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर एनर्जी। सो ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे रहते हैं ये न्यूट्रिएंट्स के लिए रहते हैं। you need oxygen, you need the sugars, you need amino acids मतलब proteins, you need the good fats, vitamins and minerals। इसलिए जब भी हम ब्यूटी के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ ऊपर से नहीं रहता है, सब अंदर से भी रहता है। and that's why taking your health supplements like Nutralite products is very very important if you want to have a good skin also। तो जैसे मैंने कहा, सेबेशियन एंड स्वेट ग्लैंड, एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस पिक्चर, ये जो हाइड्रोलिपिडिक फिल्म लिखा है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोलिपिड फिल्म है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। हाइड्रो मतलब वाटर एंड लिपिड मीन्स फैट। ये प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फैट एंड वाटर है जिसका pH 5.5 to 5.6 है। दैट इज द आइडियल pH विच यू शुड नो कि हमारे स्किन का, फेशियल स्किन का ये आइडियल pH होना चाहिए। पर क्योंकि पोल्यूटेंट्स रहते हैं, क्योंकि केमिकल्स रहते हैं एयर में, एंड अ लॉट ऑफ अदर टॉक्सिन्स एंड इवन स्वेट, because of that this pH falls down and becomes more acidic। plus
जो सोप्स रहते हैं नॉर्मली, कुछ लोग सोप्स यूज करते हैं, फेस वॉशेस नहीं यूज करते, सोप्स यूज करते हैं फेस वॉश करने के लिए, अपने खुद का साफ करने के लिए, तो वो साबुन जो रहते हैं वो अल्कलाइन रहते हैं, and they sort of neutralize this mildly acidic pH, and that way वो disturb करते हैं, destroy करते हैं हमारे स्किन के बैरियर को. Now here as I said, जो हाइपोडर्मिस रहता है सबसे नीचे वाला लेयर, वो जस्ट फैट रहता है वहां पे, तो वो इंसुलेशन का एंड बफरिंग का काम करता है. देयर आर नो significant functions as far as skin care, face skin care and anti-aging is concerned. So जो भी products है वो यहाँ epidermis and dermis तक ही काम करते हैं. So this is what you see as a normal skin. अगर normal skin देखने जाए तो ये है epidermis, ये है dermis, ये हमारा बेसल लेयर, यहाँ पे मेलानोसाइट्स, यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो फ्लैटेंड डेड सेल्स है, यहाँ पे पोर ओपनिंग है, और ये देखेंगे आप तो ये कोलेजन फाइबर्स देखिए कैसे क्रिस क्रॉस करके इंटरलिंक्ड है. जस्ट अंडरस्टैंड द दिस थिंग फिजियोलॉजी, एंड इलास्टिन इज इन बिटवीन. ओके, सो ऑल दिस इज देन ये फाइब्रोब्लास्ट जो है ये बीच के सेल्स है व्हिच गिव राइज टू न्यू healthy collagen and elastin fibers, and ये blood vessels getting all the nutrients from your body which are basically the macro and micronutrients that are needed. So skin aging क्यों हो जाता है? Skin aging के लिए causes रहते हैं extrinsic factors which are environmental, intrinsic factors जो genetic and hereditary रहते हैं, lifestyle choices. So extrinsic मतलब क्या? sun exposure. आप देखोगे कि यहाँ पे polluted skin and unpolluted skin कितना difference है. ये देखिए ये अंदर एलर्जेंस जा रहे हैं एंड पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं, एंड जो स्पेस है इन बिटवीन द सेल्स that is increasing, and you can see the tanning effect also that is happening. तो ये extrinsic aging हो जाता है, sun exposure, pollution exposure, उसकी वजह से collagen elastin fibers damage हो जाते हैं, wrinkles हो जाते हैं, epidermis thick हो जाता है, yellowish tone आ जाता है skin को, एंड डार्क स्पॉट्स एंड डिस्कलरेशन हो जाता है. फिर उसके बाद इंट्रिंसिक मतलब नेचुरल एजिंग जो हो जाता है, इसमें एपिडर्मिस एकदम थिन हो जाता है क्योंकि प्रोटीन्स इतने नहीं शायद लोगों में आ जाते हैं, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, सैगिंग हो जाता है. ये जो आप देखेंगे तो एक्सप्रेशन लाइंस डीपन हो जाते हैं यहाँ पे. No, all this deepens up and the skin becomes drier. There's less of oil production that happens in the skin. And personal choices which also affect our, ये तो free radicals के वजह से हो जाता है. Smoking, less nutrients, caffeine, alcohol, lack of exercise, weather exposure, stress, lack of sleep and very bad skin care routine. अगर आप skin का ध्यान नहीं रखेंगे तो all this is going to affect your skin. एंड हमारे स्किन जो रहता है एवरी डेकेड ऑफ आवर लाइफ इज डिफरेंट. ओके, सो दिस यू जस्ट सी कि 20s में ज्यादा पिंपल्स रहते हैं, ऑयलीनेस रहता है, डिहाइड्रेशन रहता है, 30s में फर्स्ट लाइन एंड रिंकल्स. दीज आर द नोटिसेबल इफेक्ट्स दैट यू विल सी, दैट पीपल विल नोटिस इन देम. ओके, अनइवन स्किन टोन, 40s में रिंकल्स नोटिस हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स, ड्रायर स्किन, 50s में लॉस ऑफ इलास्टिसिटी like sagging, deepened wrinkles, skin yellowing, discoloration, and 60s में drier, thinner skin and lack of radiance. तो यहाँ पे आप देखने जाएंगे तो this is a young skin of a maybe teenager, and यहाँ पे intact collagen, elastin सब fibers है, and बीच में matrix अच्छा है, पर यहाँ पे जैसे उम्र जा रही है आप देखोगे कि collagen, elastin fibers सब टूट गए हैं. Okay, so there's not much of a support that is happening, and that I told you that is what we see, but the same things that you see they start very early. अभी रफनेस आप देखोगे it starts in our 10s और दिखाई देता है 30s में, या फिर फाइन लाइन स्टार्ट in our early 20s पर दिखाई देते हैं 40s में. यू नो, इलास्टिसिटी लॉस भी 20s में स्टार्ट हो जाता है एंड 50s में दिखाई देता है. सो बेसिकली द डैमेज स्टार्ट्स much much early than what is seen on the skin. जो डैमेज है आपका 10s में, 10th डिकेड में, 20s में, टीनेजर एज में स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखने लग जाता है 30s and 40s में, and by that time quite a significant damage has happened to the skin and skin layers. Now before we proceed further, some common questions जो आ जाते हैं कि क्या फर्क पड़ है men and women skin में, skin type, skin condition. So we'll take care of each of these questions before we move ahead.
So women's skin and men's skin, there is a little difference definitely. Women's skin thinner रहता है, smaller pore size रहता है, less oil production. In in opposition, men का skin thicker रहता है. So you need products which will go a little deeper, larger pore size रहता है, oil production ज्यादा रहता है, hormones के वजह से moisture कम रहता है, और क्योंकि repeated shaving होता है तो drier on the surface रहता है, and hair भी जो रहता है face पे वो काफी rough and coarse रहता है. So these changes are, so that's why you need a little bit of more intensive care for men's skin. फिर skin type, skin condition and skin concern. Skin type depends upon कितना sebum production है. Skin concern is based on the way skin looks and acts, and skin condition temporary conditions of the body है, and we'll see that more in detail. तो skin type हमारा जैसे मैंने कहा depends upon कितना तेल कटी पना है चेहरे पे, and that is decided by our genetic hereditary factors. So skin types नॉर्मली 4 टाइप में आ जाते हैं. हम देखेंगे तो ऑयली स्किन रहता है जो शाइनी दिखेगा, लार्ज पोर साइज रहेगा, ग्रीजी टेक्सचर रहेगा, ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाले सेबेशियस ग्लैंड्स रहेंगे. फिर ड्राई स्किन डल रहेगा, रेडनेस ऑन चीक्स रहेगा, रफ लगेगा, एंड देयर इज नॉट मच ऑयल प्रोडक्शन. एंड जब भी दोनों ऑयली एंड ड्राई एक ही फेस पे रहते हैं, स्पेशली यहाँ पे ये टी जोन है, यहाँ पे ऑयलीनेस दिखेगा, और ये जो यू जोन है यहाँ पे ड्राइनेस रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन, एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन. एंड द रेयरेस्ट टाइप ऑफ स्किन आप देखोगे तो नॉर्मल स्किन रहता है, where you don't have blemishes and it's a perfect balance of oil and moisture and normal texture रहता है. So हमारे जो products है, कौन से भी products आप skin के लिए use करेंगे, the aim of all your product uses is to achieve ये normal skin, to achieve as normal a skin as possible, कि radiant appearance हो जाए, and no blemishes and no redness and normal texture हो जाए. So how do we know our skin type? Is basically wash our face and don't apply anything, wait for an hour and see how it feels. अगर itchy and tight लगे, flaky patches है तो dry skin type है, likelihood of being dry skin. Shiny या greasy लगे, especially in T zone तो oily, and oily in T zone and dry in the U zone along the cheeks and jawline, the combination and feels good is a normal skin. So because as I said before कि depending upon your skin type आपको आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे. प्लस स्किन कंसर्न्स एंड स्किन कंडीशंस के मुताबिक भी अलग स्पेशल कंसर्न्स के प्रोडक्ट्स है. सो दीज आर द स्किन कंसर्न्स एंड स्किन कंडीशंस जो डिटेल में जैसे मैंने ये बताया. स्किन टाइप जैसे ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल. स्किन कंडीशन इज सेंसिटिव, डिहाइड्रेटेड या फिर एक्ने, एंड वील कवर इट लेटर ऑल्सो. एक्ने मतलब पिंपल्स. स्किन कंसर्न इज अ टेम्पररी थिंग, तो उसमें डिहाइड्रेशन रहता है, dullness. Now you'll wonder what is the difference between a dry skin and a dehydrated skin and a dehydration, which we'll do. Dullness फिर रहेगा skin concern, hyperpigmentation या uneven skin tone, fine lines, wrinkles and sagging. So dry skin versus dehydrated skin. Dry skin is a skin type जहाँ पे oil कम पड़ जाता है, and causes are like we said the intrinsic factors or the extrinsic factors, and it is a continuous thing. But dehydrated skin is lack of water in the outermost layers. Dehydration is a whole body dehydration which can be taken care of. Okay, so dehydrated skin सिर्फ skin के outer layers का problem है जहाँ पे enough water नहीं है, जहाँ पे again environmental factors are a big cause, and it's a temporary situation which can come and go and you can take care of it. Okay. So another question is what causes enlarged pores. आप देखेंगे यहाँ पे तो pores जो है इनके ये काफी बड़े दिख रहे हैं, तो ये एजिंग के वजह से हो सकता है, excessive oil production, internal external factors, maybe not taking care of your skin properly, all this leads to enlarged pores. फिर उसके बाद ultraviolet radiation जैसे मैंने कहा, the most important concerns are UVA, ultraviolet A and ultraviolet B. अभी अब देखेंगे कि most penetrating is ultraviolet A, throughout the day penetrates through the glass and window also. So हमारे चेहरे पे, हमारे बॉडी पे continuous ultraviolet A का मारा होता है, और ये ultraviolet A जो है, these are the damaging ones which go into our dermis also.
so they penetrate everywhere. Ultraviolet B is stopped at the epidermis level. तो इसलिए ये जो burns है, tanning का जो effect है, they act on the melanocytes and they give the tanning and browning effect. पर ये जो UV A rays है, ultraviolet A, they go even further deeper. They damage the collagen, they damage the elastin, they cause premature aging and they also cause allergy. So जैसे मैंने कहा UVA एजिंग रेज है, दे गो वेरी मच डीपर इनटू द स्किन और स्किन एकदम रिंकल्ड एंड श्रिवल्ड भी एंड सैग करने लग जाता है. एंड यूवी रेज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डे. ऐसा नहीं है कि सन ऊपर आ गया तो ज्यादा है और इवनिंग को कम है, नहीं ऐसा नहीं है. पूरा टाइम UV rays are constantly there. That's why throughout the day also, even if you are in the house, you should be using a sunscreen. UVB burning rays है जो epidermis तक ही जाते हैं and they act on the melanocytes which create the melanin pigmentation and sunburn cause करते हैं and even the cells of the epidermis to thicken so rough skin हो जाता है इसके वजह से. And free radicals are a normal byproduct of digestion in the body. Plus ये free radicals तैयार हो जाते हैं because of the chemicals, because of the toxins. These are basically just understand something which attacks our body and destroys a lot of cells. तो ये इसके वजह से जब भी फेस पे काम करते हैं तो डलनेस, लाइफलेसनेस एंड रिंकल्स सब कुछ इसके वजह से हो जाता है. सो लॉट ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द स्किन ऑफ आवर फेस. So what causes discoloration and dark spots? Like I explained right now, melanocytes ज्यादा हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे तो लीक हो जाएंगे, तो फिर ये UV लाइट जो है UVB रेज उसके वजह से हो जाते हैं and you get all these melanin and dark spots over a period of time. Fine lines and wrinkles aging के वजह से, UVA डैमेज के वजह से हो जाते हैं, हेल्थ के वजह से, पर्सनल लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल ऑल्सो. Smoking especially, you know, it destroys the collagen in the skin. So उसके वजह से skin sagging is even further damage, further aging, further ultraviolet damage. जहाँ पे जो matrix है, जो अंदर का collagen and elastin है, वो stiff हो जाता है and it has no elasticity, it has no supporting factor and the skin dips inside. You can see अंदर जा जाता है और sagging हो जाता है. So natural जो shape रहता है skin का वो निकल जाता है. फिर sensitivity, like I said, sensitive skin is which reacts to products, ingredients or manual manipulation. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, it can happen because of sun damage या फिर आपने स्टार्टिंग में बराबर से products नहीं यूज किए हो जो आपके स्किन के लिए स्पेसिफिक हो, या फिर ज्यादा एक्सफोलिएशन, ज्यादा स्क्रब्स. स्पेशली व्हेन यू सी देयर आर सम अदर कंपनीज के जो स्क्रब्स रहते हैं आप देखोगे तो बहुत रफ रहते हैं and they destroy the skin and make the skin sensitive. So reddening रहेगा, itching रहेगा, products से reaction आ जाएगा and there's a weak moisture barrier. So it's a very very sensitive sort of a skin और products भी specialized लग जाते हैं उसके लिए. Now a lot of people say कि मैं moisturizer वैसे भी use करती हूँ तो eyes के लिए अलग moisturizer क्यों? What is so special about the eyes? So हम eyes के यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो ये जो एरिया है काफी थिन रहती है स्किन, वहां पे फैट नहीं है इतना, सपोर्टिंग कोलाजन इलास्टिन कम रहता है एंड ऑयल ग्लैंड्स नहीं है. सो इसके वजह से वहां पे एजिंग फास्ट दिखता है, रिंकल्स फास्ट दिखेंगे एंड यू नो पफीनेस भी ज्यादा रहेगा अगर पीपल हैव अ टेंडेंसी फॉर पफी आईज जो रहते हैं क्योंकि सपोर्ट वहां पे बहुत कम है. सो फॉर दैट यू नीड अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉर आई केयर, eye area. Special products are to be used. So in essence हमें products अलग अलग हमारे स्किन के लिए जरूरी है. We need to take extra skin care products क्योंकि our skin is not capable of taking care of external aggressors as our age increases. Why artistry? You know, इतने सारे products, a lot of people will say क्यों artistry क्यों ले? So you know, to see the logical side of artistry, इट्स क्लिनिकली टेस्टेड है, गारंटीड टू परफॉर्म. जो वो कहता है वो करेगा वो प्रोडक्ट. 50 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है. लाइक आई सेड इट्स नंबर 1 सेलिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया. 1.4 इन सुपर प्रीमियम कैटेगरी. $1.4 बिलियन सेल्स है वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर. 500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है जो बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में. पेटेंट्स है, मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो लीगल है, वो यूनिक है एंड वो एक्चुअली काम करेंगे. मतलब जो प्रॉमिस करते हैं वो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही. एंड जो स्किन केयर है वो बोथ मेन एंड वुमेन के लिए है फॉर डेली यूज एंड वीकली यूज ऑल्सो.
प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतने हाई है क्योंकि वो बेस्ट एंड सेफ प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट न्यूट्रलाइट फार्म से प्रोडक्ट्स और एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं. And you know, in today's world, everybody is willing to pay a little bit more to get the results that are there. So it comes with a 100% satisfaction guarantee. 12 साल के उम्र से ऊपर सब यूज कर सकते हैं, and it is safe to use in pregnancy also. So these are the logical points when you see, you know, anybody wants theoretical points, so artistry यहाँ पे आ जाते हैं. But there are other things that come because there are the product range में जो specific ingredients है, they work so beautifully with your skin to give such amazing results कि you know that whole emotional factor comes into play when you look at artistry. So artistry products जो है हमारे वो डेली केयर, स्पेशल केयर एंड कलर्स में आ जाते हैं. एंड हमारा जो स्किन केयर रिचुअल रहता है, व्हाट आर्टिस्ट्री टेल्स अस इज यू शुड प्रेप, you should infuse and you should nourish. प्रेप मतलब क्या है? यू प्रिपेयर योर स्किन टू टेक द नरिशमेंट. तो वहां पे क्लेंजर आ जाता है, टोनर आ जाता है. फिर इन्फ्यूज करने के लिए यू गिव द सीरम्स या फिर एसेंसेस रहते हैं या फिर ट्रीटमेंट्स रहते हैं स्पेसिफिकली फॉर सर्टेन कंसर्न्स. एंड नरिश करने के लिए मॉइस्चराइजर्स रहते हैं, जो फेस के लिए अलग मॉइस्चराइजर है और आंखों के लिए अलग मॉइस्चराइजर है. एंड ये जो रूटीन है ये डे के लिए अलग आता है और नाइट के लिए अलग आ जाता है. So all this needs to be done on a daily basis if you want your skin to look very very beautiful. क्योंकि हम देखने जाएंगे तो our skin is going to be with us for the rest of our lives, and skin is going to be the face is going to be the first thing that people see. So why not have a very beautiful glow, a very nice glow on your face, a very healthy skin, because it will tell people कि this person is really taking care of her skin, so she must be really a conscientious person. उसको definitely यहाँ पे केयर लेते हैं तो सब चीजों में केयर लेते रहेंगे. सो जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली क्लेंजिंग रहता है टू कीप द पोर्स क्लीन, हमारे छिद्र खोल के अंदर के डीप इम्प्योरिटीज निकालते हैं. टोनिंग रिड्यूसेस द साइज ऑफ द पोर्स, प्लस पीएच बैलेंस भी कर देता है. एंड मॉइस्चराइजिंग टू प्रोटेक्ट द स्किन. सो ये अगर स्किन केयर रूटीन हमें ज्यादा टाइम नहीं डालना है, 3 मिनट में कर सकते हैं, जो बेसिकली आर्टिस्ट्री का एसेंशियल्स का रेंज जो है वो क्विक, कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव है. Okay, and you can use this in just 3 minutes a day. It's done. आपका जो cleansing भी हो जाता है with the toner, and आपका moisturizing भी हो जाता है, and it's infused with nature and perfected by science. So क्या आ जाता है daily care range में? एक तो cleanser आ जाता है, which is a 2-in-1 cleanser and toner, and एक light lotion आ जाता है. And sometimes Amway also makes available a multi-purpose lotion. So when it's available, it's a very good thing. It's the light lotion with some SPF sunscreen added to it. So ये जो है, ये दोनों जो products है हमारे डेली यूज प्रोडक्ट्स है, एलर्जी टेस्टेड है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, नॉन कोमेडोजेनिक मतलब आपके छिद्रों को ब्लॉक नहीं करने वाले, फॉर ऑल स्किन टाइप्स, प्लस ऑल्सो फॉर सेंसिटिव स्किन. And both men and women can use this above 12 years of age. इसमें क्यूकम्बर है जो कूलिंग है, सूदिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है. फिर विटामिन सी है फ्रॉम न्यूट्रलाइट एसेरोला चेरीज, जो वापस एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा. सल्फेट फ्री है, सोप फ्री है, ऑयल फ्री है, एंड वाटर बेस्ड क्लेंजर है हमारा. सो ये क्लेंस करता है, and you can use it as a makeup remover also, for removing the foundation also. So dirt, makeup, impurities, excessive oil निकाल देता है, and you get a fresher, cleaner look. And also skin को soft कर देता है, pH balance कर देता है skin का, like I said, you know, because the soaps जो अगर use करेंगे तो वो destroy करते हैं skin को, and we need an ideal pH of 5.5. and it is non-drying. फिर witch hazel and white willow bark, which you know acts as a toner, जो pores को छोटा कर देता है. and plus ये सब ingredients है, aloe है, licorice है, शीशो है, ये calming and soothing effect देता है आपके skin को. ओके फिर उसके बाद हमारा जो लाइट लोशन है उसमें कैमोमील है. कैमोमील एवरीबॉडी नोज, टी एटलीस्ट कैमोमील दे नो इज वेरी calming and soothing. तो यहाँ पे भी जो कैमोमील जो हमारे लाइट लोशन में है, आफ्टर डूइंग द क्लेंजर एंड टोनर, बस 3 मिनट के अंदर ही आपका फेस वॉश करके आप लोशन लगा दीजिए. सो योर ब्यूटी केयर रूटीन फॉर द डे इज डन. So it's a soothing and comforting thing. Acerola cherry है for antioxidant effect, and again witch hazel for toning effect, cucumber glycerin for hydrating, and aloe vera for anti-irritant and soothing the skin. And जैसे कहा तो oil free है and moisture दे देता है skin के लिए,
एंड इट इज नॉन कोमेडोजेनिक, तो आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करने वाला है, और ये शाइन रिड्यूस करता है, तो एक मैटिफाइंग इफेक्ट चेहरे पे देगा. सो यू विल हैव अ वेरी गुड प्रोटेक्टिव शील्ड ऑन योर फेस. एंड ट्वाइस अ डे यूज करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में. इट्स जस्ट यूजिंग अ लिटिल बिट एंड अप्लाइंग ऑन योर फेस. अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आईज. एंड अगर यू कैन फॉलो द लाइट लोशन विथ सनस्क्रीन, या आपके फाउंडेशन को भी यूज कर सकते हैं. प्लस अगर मल्टीपर्पज लोशन अवेलेबल है तो उसमें ऑलरेडी सनस्क्रीन आ जाता है. स्पेशल केयर जो है हमारे पास पॉलिशिंग स्क्रब है बाय इन एसेंशियल्स बाय आर्टिस्ट्री, एंड क्रीमी मसाज है बेसिकली टू पैम्पर आवर स्किन. एंड दीज आर अ वीकली रेंज प्रोडक्ट, यू डोंट नीड टू यूज दिस एवरी डे. दो फिलहाल में ही हमें ट्रेनिंग में बताया गया कि द पॉलिशिंग स्क्रब is gentle enough to be used daily also. So if you wish, you can use it too. Non-comedogenic for both men and women. And ये polishing scrub क्या करता है, मैंने जब वो आपको दिखाए, जो flattened dead cells जो है सबसे ऊपर हमारे स्किन पे, which cause the dryness and flakiness. So this gentle polishing scrub gently exfoliates, मतलब it removes the topmost layers of the skin. So जो dead skin है वो निकाल देता है, और आपकी स्किन के जो अंदर के जो हेल्दी सेल्स है उसको ऊपर आकर it gives the radiant and brighter look to your skin. And ये इसमें जोजोबा beads है. So ये जोजोबा beads जो है ना, these are round beads, so they are not rough on your skin. ये gently निकाल देते हैं dead cells को, and they dissolve. So ये apply करना है, and you scrub for quite some time till you feel कि the beads have disappeared, and it gives a very soft, smooth and polished glow. So जैसे मैंने कहा, exfoliates the skin without drying. उसके बाद आप चाहिए तो creamy massage. This can be used as part of an artistry facial. creamy massage कर सकते हैं, non comedogenic as I said. इसमें shea butter and natural oils है, so instant moisturization देता है, luxurious feel है, and skin becomes smooth, soft and silky. Avocado does the same thing in it. And वैसे ही use करना है, you can use it once to 2 to 3 times a week. You can use these and no issues at all, and they're very very beautiful. फिर उसके बाद अगर dryness ज्यादा हो, dehydrated नहीं, dryness जो रहता है, even an oily skin, if there's less of moisture, you can use दिस मॉइस्चर इंटेंस मास्क, जो इमीडिएट मॉइस्चर देता है आपके स्किन को, ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन को रिलैक्स कर देता है, एंड हाइपोलिपिड हाइड्रोलिपिड मैट्रिक्स जो मैंने बोला था, जो सबसे ऊपर रहता है स्किन के, वो डैमेज होता है, उसको वापस ये तैयार कर देता है. All skin, it's for sensitive skin types also. You will get a immediate moisture boost even after one application. फिर उसके बाद हमारा artistry anti aging skin care range आ जाते हैं, and the anti aging skin care range I will cover in more detail in the next session. Right now we'll be just going through it. So यहाँ पे first आ जाता है youth extend collection. Normally people who are in their late 20s or early 30s or 30s में, the very very good product range, क्योंकि ये क्या कर देता है, this reprograms your the skin, the future of your skin. It repairs any damage that has happened to your skin, and it protects your skin from further damage. तो एक हफ्ते के अंदर आपकी स्किन यंगर दिखने लग जाती है. और क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ पेटेंटेड थिंग्स है जो इतना इनोवेशन के बाद उन्होंने ढूंढा है. वन इज लाइफ सर्ट, जो आपके जो स्किन के सेल्स में जो यूथ प्रोटीन्स है जिसकी वजह से स्किन यंग दिखता है, वो लाइफ सर्ट boosts the youth proteins by 280%. So your skin looks younger for a longer time. फिर माइक्रो एक्सिस पेप्टाइड करके जो कोलाजन को रिपेयर करता है, तो जो सैगिंग और जो फर्मनेस फाइन लाइंस है उसको निकाल देता है. एंड प्लस अफ्रीकन बेओबैब फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है विद एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट एंड सूद्स एंड मॉइस्चराइजेस आल्सो. सो देयर इज अ पावर सिस्टम विद इट व्हिच वी विल डू नेक्स्ट टाइम. राइट नाउ इट्स जस्ट, आप देख सकते हो आफ्टर 12 वीक्स ऑफ यूज ही कैसे फर्क पड़ा है. ये जो फाइन लाइंस है निकल गए हैं, एंड ये जो सैगिंग था वो सब निकल गया है. एंड 81% people say that within 1 week itself you can see the younger looking skin that is there. Okay, so let us watch a video now. I love Youth Extend. I use it myself. I've been using it for the longest time. That is there. So I will just show you.
um, one second. A video for Youth Extend. Artistry moves science and technology forward with our breakthrough innovation to reprogram the future of your skin. The Artistry Youth Extend collection. Diminish the look of fine lines and wrinkles. Boost radiance and skin clarity. Youth Extend technology is shown to reprogram the future of skin. Start seeing a younger look in only 1 week. At Artistry, we did extensive research and testing on globally sourced botanical ingredients and selected the most effective ones proven to protect and improve skin's integrity. These ingredients, combined with Artistry's advanced technology, work together to create a comprehensive regimen that reprograms the future of skin on a cellular level. Now we can help delay skin aging so that it has a younger appearance longer. As we age, environmental aggressors cause increasing damage. The skin's ability to repair itself diminishes, and the first signs of age start to appear, from fine lines and wrinkles to a loss of radiance and skin clarity. Now, Artistry scientists have discovered the secret to help repair and revitalize the look of aging skin, to reprogram skin's future so it looks younger longer. The key to reprogramming skin's future is through the discovery of LifeCert, a rare Mediterranean botanical proven to encourage skin's natural youth protein production by 280%. In addition, the inclusion of our exclusive Micro-X6 peptide helps repair damage, encouraging collagen growth. Extracts from the African baobab, also known as the tree of life, in combination with botanicals from our organic farms, create this breakthrough proprietary complex for advanced skin protection, for more youthful-looking skin now and into the future. In fact, in a clinical study, 78% of women noticed a visible reduction in fine lines and wrinkles in 1 week. Experience the fragrance, a delicate bouquet of soft magnolia and rose, blended with green tea, citrus, and cedarwood. Artistry Youth Extend presents Serum Concentrate, formulated with the highest levels of LifeCert. This lightweight serum smooths the look of fine lines and wrinkles. Enriching Cream, a rich and sumptuous cream, revitalizes for a softer, younger look. Enriching Eye Cream diminishes the look of fine lines and wrinkles in the delicate eye area for vibrant, younger-looking eyes. Reprogram the future of your skin. Artistry Youth Extend. So as we can see, Artistry Youth Extend is an amazing range जो मैं suggest करूंगी जो भी late 20s में हो should start using it immediately. So let's continue. Okay. Yeah. So next range जो आ जाता है Artistry Youth Extend Ultra. Okay, तो ये जो है range is for a little more mature age group. Maybe 40s, mid 40s and late 40s के ऊपर जो है, especially 50s and 60s, so 100% this is what we recommend. And it comes with an essence concentrate, a serum concentrate for the eyes, and lifting cream. So ये जो है ना highly advanced collection of skincare है. Okay, so you can use the serum from this, और ये specifically sagging skin के लिए है. एंड येलोइंग स्किन के लिए है, लॉस ऑफ रेडियंस जिसमें आ जाता है वो टाइप ऑफ स्किन के लिए है. सो इट हैज अ स्पेसिफिक रेड कैवियर कॉम्प्लेक्स which has anti-aging properties. It is a very strong antioxidant and ये क्लीनिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है, जो डर्ट जो हमारे स्किन के सरफेस पे वो निकाल देता है. फिर अनदर जिनसेंग इज देयर जो येलोइंग जो है हमारे स्किन का वो निकाल देता है. एंड अनदर फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो ट्रांसलूसेंसी, मतलब जो यू नो शेयरनेस जो रहता है स्किन का, जो ग्लो रहता है, यूथफुल रेडियंस जो रहता है वो वापस लाता है. And again there's Micro-X6 peptide which reduces the appearance of fine lines and wrinkles. So this is for a more mature age range.
फिर आइडियल रेडियंस का आर्टिस्ट्री का आइडियल रेडियंस रेंज है फॉर यू नो हाइपर पिगमेंटेशन एंड स्पॉट्स जो रहते हैं, तो उसके लिए एक इल्यूमिनेटिंग एसेंस एंड स्पॉट करेक्टर है, which is basically to increase the glow, the luminosity, given even skin tone रहता है हाइपर पिगमेंटेशन निकालने के लिए और ट्रांसलूसेंसी के लिए। और ये स्पेसिफिक 3D टेक्नोलॉजी यूज करता है। 3D टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि इट गोज ऑन 3 डिफरेंट डेप्थ्स। पहले डेप्थ पे ये एक ब्लेंड को देता है जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है, दूसरे डेप्थ पे पर्ल प्रोटीन जो अपना पर्ल्स को मोती का जो प्रोटीन रहता है, यू कैन इमेजिन वो ग्लो जो आ जाता है वो इसमें है पर्ल प्रोटीन। एंड थर्ड लेवल पे एक एनकैप्सुलेटेड व्हाट डू यू से छोटे छोटे तत्व रहते हैं जिसमें विटामिन सी, एसिरोला चेरी, लिकरिश एंड सेरामाइड है, जो ये सबसे बेजल लेयर पे जाते हैं। सो ये जो है ना, ये मेलानोसाइट्स को जो प्रोडक्शन है मेलानिन का वो कम कर देता है एंड रोक देता है प्रोडक्शन, एंड उसके वजह से जो ग्लो आ जाता है वो ये आइडियल रेडियंस से हो जाता है। सो यू गेट अ रेडिएंट ग्लो, स्किन लुक्स क्लियरर एंड हाइपर पिगमेंटेशन भी कम हो जाता है। And dark spot corrector is for dark spots and getting an even tone look. So अगर आपको you know which do I use, so you just realize कि अगर skin tone कम है, uneven skin tone है, या फिर पिंक हेल्दी ग्लो नहीं है, ब्लेमिश मार्क्स है, पैचेस है, तो फिर वहां पे आप एसेंस यूज करो। एंड अगर जस्ट पैचेस है, स्पॉट्स है, यू नो, तो आप वहां पे स्पॉट करेक्टर यूज कर सकते हो। Then we have an intensive skincare renewing peel, which is an amazing thing. And यहाँ पे वो जो मैंने आपको pH के बारे में बताया, that is very important here, because what this does ना, जो chemical peels रहते हैं उसका काम ये enzymatic peel करता है। तो मशरूम जो है वो मशरूम में से एंजाइम्स निकाले गए हैं थ्रू अ 100 स्टेप पेटेंटेड प्रोसेस। 100 स्टेप्स के बाद ये जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाला है। और ये जो मशरूम है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो काम करता है ऑन डेड सेल पीएच। सो जो एसिडिक पीएच है वहां पे काम करता है, एंड व्हेन दैट एक्सट्रैक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द नॉर्मल पीएच ऑफ द हेल्दी स्किन, इट स्टॉप्स एक्टिंग। सो आपको ये एक परफेक्ट पील देगा, रफ डल फ्लेकी स्किन निकालेगा। यूज इट ट्वाइस अ वीक ऑन नॉन कंसेक्यूटिव डेज। सो इमीडिएटली आपका जो डलनेस, ड्राइनेस, फ्लेकीनेस है वो निकल जाएगा। सॉफ्ट लाइंस जो है वो स्मूदन हो जाए, ये फाइन लाइंस एंड रिंकल्स स्मूदन हो जाएंगे टू सम एक्सटेंट। इंस्टेंट मॉइस्चराइजेशन देगा एंड स्किन रेडिएंट दिखेगा। एंड यूज इट आफ्टर क्लीनिंग योर स्किन, keep it for 8 minutes and you will always get a perfect peel. And do not use any scrub or anything else जब भी आप ये peel use करें। इसका एक कोर्स रहता है, use it twice a week for 6 weeks, take a break, and then again after 3 months you can take it again. So this is another new thing that has come up, which is an amazing thing, and we'll discuss all these products in detail next week. जो advanced vitamin C plus dual action hyaluronic acid treatment है। एंड ये जो क्या करता है, दिस गिव्स अ प्लम्पिंग इफेक्ट टू आवर स्किन। एंड विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट दे देता है, एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी दैट यू कैन फाइंड फॉर योर स्किन। तो यू हैव टू यूज इट। ये जो आता है 30 डे के सप्लाई में आता है, यू हैव टू यूज इट विद इन 30 days, ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग इवनिंग यूज करेंगे। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट गोज बिहाइंड इट। सो जब भी हम फेशियल भी करेंगे आर्टिस्ट्री का, अगर आप देखने जाएंगे तो आप फेशियल विद आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स विल कॉस्ट यू अराउंड 76 रुपीज पर यूज। और आप जब सभी प्रोडक्ट्स यूज कर ले लेंगे तो आपको एक एक बॉटल जो है, जो स्क्रब है, जो मास्क है, जो मॉइस्चर इंटेंस क्रीमी मसाज है, यू विल गेट एटलीस्ट 50 to 60 यूजेस आउट ऑफ इट। मतलब एक ट्यूब आपका 1 साल तक चलेगा। सो ये फेशियल के लिए हम नॉर्मली बता देंगे नेक्स्ट टाइम ऑल्सो कैसे, बट दिस ओवर हियर यू कैन सी कि कितना यूज करना है। आई क्रीम जो है, ये सीरम जो है अगर यूज करेंगे तो वटाने इतना यूज करना है, आई क्रीम उससे भी कम। आई क्रीम आप लगाएंगे तो यहाँ पे ऑर्बिटल बोन पे लगा दीजिए, यहाँ पे नहीं, एंड वील कम टू दैट फर्दर। क्लेंजर जो है you'll need around 1 to 2 rupee coin size का अपना जो रहता है, मॉइस्चराइजर मे बी 1 rupee coin size का। so these are the small amounts that you use। तो हम जब लेते हैं ये products, like I said at the beginning, they come value for money per cost per use, because मैं जब भी ये यूथ एक्सटेंड लेती हूँ तो
मेरी एक बॉटल जो है वो मुझे कम से कम 12 to 15 months लास्ट हो जाती है. So you can imagine that they are such long lasting things. And then we come to the colors range जो है artistry के. We have the foundation, we have the loose powder. Foundation is superb, I'm using it right now. And उसमें Tahitian pearls है, again pearls है, optical prisms है. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, they have that reflecting property. तो आपकी skin के जो ऑप्टिकल इल्यूजन देता है कि आपकी स्किन स्मूथ है एंड 24 आवर्स का कवरेज दे देता है एंड यू गेट अ सीमलेस दिस थिंग एंड इट कैन स्टैंड अप इन हीट, ह्यूमिडिटी एंड एक्टिविटी ऑल्सो. प्लस सनस्क्रीन आ जाता है एंड PA++3 आ जाता है विच प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम द एजिंग यूवी रेज एंड फ्रॉम द टैनिंग यूवी रेज बोथ. एलर्जी टेस्टेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन. 2 शेड्स में आ जाता है, आप जो चाहिए वो ले सकते हो. अगर मोस्ट स्किन्स के लिए जो डार्कर है बफ वो यूज करते हैं. इनफैक्ट आई एम यूजिंग बफ आल्सो व्हिच माइट बी अ सरप्राइज, बट आई वाज टोल्ड फॉर माय स्किन टोन आल्सो बफ यूज करके द फेयर पाउडर नीड्स टू बी यूज्ड विद इट. सो लूज पाउडर जो है इसमें भी पर्ल्स है एंड ऑप्टिकल प्रिज्म्स है which gives you blurs out your skin के imperfections and flawless complexion का look देते हैं, matte finish भी दे देता है. and ये भी fair and medium में है, so like I said you can mix and match it. So this is just can we raise hands later please because it comes in between over here. Thank you. Yeah. So ये जो you okay let be. So ये जो यूसेज है हम जो यूज करते हैं, so we have this as a daily skin care regimen. उसमें essentials जैसे मैंने कहा everybody can use it from 12 years and above और डेली मेंटेनेंस के लिए और स्किन केयर बिगिनर्स के लिए. एंड इट कंसिस्ट ऑफ द जेल क्लेंजर एंड द लोशन और द मल्टीपर्पज लोशन विद द SPF. फिर उसके बाद जो आइडियल रेडियंस आ जाता है वो फॉर स्किन पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, टैनिंग, ब्लेमिशेस, अनइवन स्किन, डार्क स्पॉट्स, मेलास्मा. एंड उसके लिए फिर एंटी पिगमेंटेशन का आइडियल रेडियंस है. तो आप क्लेंजर के बाद फिर एसेंस एंड स्पॉट करेक्टर यूज कर सकते हो और उसके बाद फिर आपका लोशन या फिर यूथ एक्सटेंड रेंज कर सकते हो. यूथ एक्सटेंड एज आई सेड फॉर 30+, प्रिवेंट एंटी एजिंग फॉर अर्ली फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, लाफ लाइंस के लिए. तो यहाँ पे अगेन जेल क्लेंजर यूज करेंगे, सीरम यूज करेंगे फॉर द फेस and the lotion या the cream for day and night and the eye cream जो है. And lastly we have the youth extend daily care में again it's for a more mature age range, for deeper lines, for wrinkles, for sagging, for yellowing of skin. So there's a serum, there's an essence and there's a cream जो है. तो eye के लिए serum है and face के लिए essence है and cream for the whole face. And youth extend ultra does not have the sunscreen in it, so you need to put an added sunscreen over here. और आप ये youth extend and youth extend ultra mix and match भी कर सकते हैं. फिर उसके बाद weekly care regime जो हमारा आ जाता है, again जो essentials में हमने देखा एक polishing scrub है, creamy massage है and moisture intense mask है. And ideal radiance के बाद या youth extend के बाद आप ये intensive skin care renewing peel after the cleanser use कर दीजिए. When you're using intensive skin care renewal peel तभी आप पॉलिशिंग स्क्रब मत यूज कीजिए because it goes at a deeper layer of exfoliation. And you can use a creamy massage if you wish and an intensive mask, but no need after a intensive skincare renewing peel क्योंकि ये मॉइस्चराइजेशन का भी काम करता है. So जब भी आप ये यूज करेंगे आप क्लेंजर यूज करेंगे, फिर उसके बाद पील यूज करेंगे रात को एंड उसके बाद फिर आप आपका यूथ एक्सटेंड या फिर लाइट लोशन या फिर यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा मॉइस्चराइजर जो भी है यूज कर सकेंगे. Okay, so now does the sequence of application matter? तो मैं अगर पहले मॉइस्चराइजर यूज करूँ फिर उसके बाद सीरम यूज करूँ उसके बाद दूसरा को जो तो what is there? So there is a sequence क्योंकि absorption should be better. And some products need to go deeper. जैसे मैंने कहा कि कुछ products है जो dermis में जाते हैं, कुछ products epidermis पे रह जाते हैं. So it is always better. और कुछ products shield बन के रह जाते हैं. So when you apply the shield, it's very foolish to think कि आपके जो अंदर जाने वाले products है वो अंदर जाएंगे. तो इसलिए हम अंदर जाने वाले जो products है dermis को जो जाने वाले हैं उसको हम पहले यूज करते हैं.
एंड उसके बाद फिर जो एपिडर्मिस पे है उसको हम यूज करते हैं. सो द सीक्वेंस ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मली थिन एंड लाइट कंसिस्टेंसी विल बी अप्लाइड फर्स्ट ताकि वो डीपर जाए, एंड देन द थिक एंड डेंस कंसिस्टेंसी लेस. जैसे कि पानी पहले अप्लाई, कंसिस्टेंसी कैसे जज करेंगे, पानी का सबसे थिनेस्ट कंसिस्टेंसी है, फिर उसके बाद कोई मैंगो जूस या कोई जूस रहेगा वो थिकर रहता है, एंड मलाई जो रहता है वो सबसे थिकेस्ट रहता है. सो सबसे पहले पानी का कंसिस्टेंसी वाला आप अप्लाई करेंगे, फिर मैंगो जूस वाले जैसा अप्लाई करेंगे, और फिर मलाई का. द थिकर द प्रोडक्ट द मोर द कवरेज, एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ शीट. फिर इसके बाद फिर टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स. ओके, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस ऑफ एप्लीकेशन. पहले क्लेंजर टोनर यूज करेंगे, फिर उसके बाद एसेंस, सीरम एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि मॉइस्ट स्किन अब्सॉर्ब्स दीज न्यूट्रिएंट्स फास्टर. आई क्रीम ऑन द ऑर्बिटल बोन, जैसे मैंने कहा ये जो बोन है आपका इसके ऊपर लगाना है, ये जो बोन है आपका इसके ऊपर लगाना है, और आपके जो आई क्रीम है ये फिंगर पे लेना है. यू टेक अ डिप इट अ लिटिल बिट एंड पुट इट लाइक दिस, सो इट्स ऑन बोथ योर रिंग फिंगर्स, एंड देन यू अप्लाई इट ऑन द बोन. यहाँ पे आईलिड पे मत अप्लाई कीजिए क्योंकि ये आपके आई लैशेस को क्लॉग कर सकता है और हैवीनेस देता है. द आई क्रीम इज थिन इनफ कि वो नीचे पेनेट्रेट हो सके. फिर इसके बाद आई क्रीम के बाद आप स्पॉट ट्रीटमेंट्स एंड अदर टॉपिकल मेडिकल क्रीम्स लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वो पहले लगाया तो फिर वो आंखों में जा सकता है. फिर मॉइस्चराइजर एंड डे क्रीम लगाते हैं एज अ सीलिंग एजेंट, सो इट प्रोटेक्ट्स द स्किन. सनस्क्रीन इफ योर मॉइस्चराइजर डजंट हैव इट, एंड फाउंडेशन नीड्स अ मॉइस्चराइजर, नहीं तो वो क्रैक हो जाएगा. टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा पहले क्लेंस करना है एंड इमीडिएटली एसेंस एंड नहीं तो सीरम या न्यूट्रिएंट्स लगाने हैं. सो क्योंकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन वेट स्किन में, मॉइस्ट स्किन में जाता है. तो 10-15 मिनट रुकिए, उसके बाद आपका जो यूथ एक्सटेंड या फिर अल्ट्रा का आई क्रीम मॉइस्चराइजर है वो लगा दीजिए, एंड देन जस्ट बिफोर यूर लीविंग द हाउस, 20 minutes before you're leaving the house or 5 minutes to 10 minutes after applying moisturizer, आप आपका sunscreen and foundation लगा दीजिए. And now this is another thing that I wanted to show you. अभी Artistry का virtual beauty app आया है, please download it. तो यहाँ पे आप आपका skin analysis कर सकते हैं. So this is the app that I'm showing you right now. तो यहाँ पे आप देखोगे you'll see a lot of features. You can check out the range of cosmetics. You can check out, आपका खुद का सेल्फी डाल सकते हो. यहाँ पे आप खुद का स्किन एज एनालाइज कर सकते हो, और एनालाइज करने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन आ जाएगा जहां से आपको पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आ जाएगा. सो यू नो विच प्रोडक्ट्स टू यूज. So you can get different looks, you can play around with your photo, you can upload a photo, आपका age जो है skin age and score आ जाएगा, and information about different products जो है. So आप ये ले सकते हो, या ये जो colors है ये भी आपके सेल्फी पे अपलोड करके कौन सा लिपस्टिक शेड अच्छा दिखता है, कौन सा आई शेडो अच्छा दिखता है, वो आपके खुद के फेस पे चेक कर सकते हो. So do download this. It's available on Android, and it's also available upon our Apple Store. So Google Play Store plus Apple Store पे. And this is why I'm talking about Artistry, because Amway has an Artistry Achievers Club. अगर आपने ये पिन देखा होगा, this is what I got over here. ये कुछ criteria रहता है. And why I'm so excited about Artistry is when I went there for this Amway Artistry Achievers Club, मुझे पहले लगता था ना कि Artistry is a super premium range and an expensive range, so Bombay में शायद बिकेगा. But when I went there, I saw a whole group of women who had qualified. जो नासिक के यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ पे पॉपुलेशन मे बी 5 to 10,000 ही रहेगा, वहां से there were 20 women who had come, and 20 women means each one had their own set of clients. मतलब कि 6 महीने से 12 महीने हर एक जन का 10,000 का आर्टिस्ट्री सेल हो रहा था, वो एक छोटे से जगह में से. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने कहा, दे लास्ट लॉन्ग, दे लास्ट फॉर एटलीस्ट 8 to 10 months to 1 year एक बॉटल. तो मतलब वो 6 महीना से 8, 10, 12 महीना जो कर रहे थे, इट मीन्स एवरी मंथ दे वर जनरेटिंग न्यू क्लाइंट्स इन अ स्मॉल सिटी. सो यू कैन इमेजिन कि सिटी नहीं, विलेज. सो इन ये छोटे से शहर में इतना अगर टर्नओवर हो सकता है,
तो यहाँ पे बॉम्बे में कितना बड़ा टर्नओवर आप कर सकते हो. एंड पीपल आर लुकिंग फॉर एंटी एजिंग, नॉन सर्जिकल एंटी एजिंग, एंड दैट इज व्हाई दे नीड गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स. और जैसे मैंने कहा, पीपल आर विलिंग टू पे अ लिटिल बिट मोर टू हैव गुड स्किन केयर. सो आई एम थ्रू विथ माई प्रेजेंटेशन. ओके, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक we'll be having artistry anti-aging products, non-surgical anti-aging. A lot of people look forward to it, they want to know, and बहुत turnover आप कर सकते हो उसके साथ, and the products work wonders, and बहुत सारे innovations रहते हैं, and we will definitely be covering it in more detail that is there. So I'm through with my presentation. Selling skills उसके बाद करेंगे हम, and we'll be having a very exciting makeover thing also after that. But if there are any questions, I think I will stop recording.